Good morning, students. Today, study chapter 6, tissue. Tissue broadly divides to plants tissue and animal tissue. Today, study animals. आज हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू में 4 पार्ट्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू और कवरिंग टिश्यू इज आल्सो प्रोटेक्टिव टिश्यू. स्टडी ने प्रीवियस पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू हमारा है क्या? सपोर्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू इज सपोर्टिव टिश्यू. और इस कनेक्टिव टिश्यू में हमें जो 9th लेवल में, आपके लेवल में पढ़ना है वो है ब्लड. जैसे फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ 2 होते हैं, तो पढ़ना क्या है? ब्लड. इसके बाद हमारा जो एंकर करने के लिए, एंकरिंग के लिए वो बोन और कार्टिलेज जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. इसके बाद है कनेक्ट करने के लिए, ये है टेंडन और लिगामेंट्स जो फाइबर. इसके बाद एरोलर है, ये पैकिंग में काम करता है. एडिपोस है, ये फैट्स ग्लोबुल्स को दैट इज स्टोर्स इन एडिपोस टिश्यू. थर्ड मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. टुडे स्टडीज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू को पिछले दिन कनेक्टिव टिश्यू को हमने पढ़ा था. द कनेक्टिव टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू टू कनेक्ट द one parts to another parts, and its main function binding, supporting and packing. Binding, supporting and packing of a body parts to the different organs of the body that is packed. It helps in maintain the position of the body organs, body parts, fill the gaps between the organs, and maintain position when movements of the body parts. All these functions are functions of a connective tissue. Connective tissue consists of matrix. Such matrix are present in the form of fluid. अब इसके अंदर क्या है प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सब्सटेंस है. सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट्स इन प्रेजेंट्स इन कनेक्टिव टिश्यू. अब इसमें है क्या? तो फ्लूइड है. फ्लूइड होगा मैट्रिक्स, इसके अंदर ब्लड में. और ये है कौन से? प्लाज्मा. फिर इसी तरह से हार्ड मैट्रिक्स है, फाइब्रस मैट्रिक्स है, जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट्स इन कनेक्टिव टिश्यू. अब हमारा फर्स्ट आता है दैट इज द ब्लड. ब्लड क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंसिस्ट ऑफ fluid connective tissue. It consists of fluid matrix. That fluid matrix is known as a plasma, blood plasma. 55% of a blood that consists of blood plasma, and it also consists RBC, WBC, platelets. And its main function transportation of the substances and dissolve the substance in plasma such as protein, amino acids, glucose, 'waste materials, oxygen,
carbon dioxide, all these substances are dissolved in a plasma and transported from one part to another parts of a body. Blood consists RBC. RBC, red blood cells. It is many numbers, and it consists of respiratory pigments known as hemoglobin, and this hemoglobin, that is the iron compounds and respiratory pigments, it carry oxygen from lungs to other parts of the body and helps in a cellular respiration process, provides energy to the body. And WBC. WBC is the white blood cells, larger in size. It consists of antibodies and also consists the substances, engulfs the foreign material, kill the foreign material, bacteria and other substances. So it protects the body against infection and disease. Platelets. Platelets present in fragments. RBC, WBC, the living parts, living cells. Platelets or plasma is non-livings, and platelets, the fractions, its main functions, it helps in a blood clotting. Is the main function of a blood platelets. Which means blood is a fluid connective tissue. It helps in a transportation of a substance from one part of the body to another parts of the body. Clear? It consists blood cells, RBC, WBC, blood platelets, and also the fluid matrix, that is plasma. Plasma is the fluid part, and most of the substances dissolve in it. Clear? Any doubt? Next हमारा क्या आता है? बोन. अब बोन क्या है बेटा? बोन, it is very strong, non-flexible tissue. It is a strong and non-flexible tissue. It provides anchoring. Anchor provide करता है. Anchoring to the muscles. Framework of the body that provides by bones. Bone, porous and vascular. क्या होंगे? Bones are porous and vascular. It consists. अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, that is the hard matrix, and that is protein. Some proteins are present, and other calcium, magnesium, phosphate and carbonates are present. Will be the formula of the calcium, phosphate, Ca3PO4 whole twice. Calcium phosphate is the main components. The calcium and magnesium, phosphate and carbonates presents. It makes hard, and it provides the anchoring to the body. It provides support to the different organs, provides protection to the various body parts, body organs. अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो बोन्स हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय बोन्स. बोन हमें क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेम वर्क, हमारा ढांचा, बॉडी का जो स्केलेटन है, दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स.
एंड ये मसल्स को एंकरिंग प्रोवाइड करता है, एंकर करता है. सो इट इज कनेक्टिव टिश्यू and it is also known as a skeleton connective tissue. सेकेंड हमारा आता है कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या है? इट इज ऑल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट्स. अब ये हमारे पार्ट्स में प्रेजेंट्स हैं. ये होता है इलास्टिक, नॉन वेस्कुलर. अब जैसे देखिए सिंपल एग्जांपल हो सकते हैं कि हमारा ईयर का पार्ट्स है, दिस पार्ट नोज के पार्ट्स हैं, दैट इज द कार्टिलेज. इट प्रोवाइड्स द शेप ऑफ ए बॉडी. हमारे जो ट्रैकिया है दैट इज ऑल्सो कार्टिलेज, बट ऑफ कार्टिलेज. अब इसको हम क्या कहेंगे? नॉन वेस्कुलर. नॉन वेस्कुलर यानी ब्लड फील्ड नहीं होते, वेस्कल्स में ऐसा प्रेजेंट होता है, लेसर प्रेजेंट होता है. अब इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो नोज के अंदर इसको आसानी से बेल दिया और बना दिया, नग बना देते हैं. ईयर के अंदर कुंडल बना लेते हैं. ये क्यों बनाते हैं? दिस इज ड्यू टू दिस पार्ट इज ए कार्टिलेज पार्ट. इट्स मैट्रिक्स इज प्रोटीन. इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है. एंड इट प्रोवाइड्स द शेप ऑफ ए बॉडी. इलास्टिक, it change the positions. So and provides proper shape and size of a body. Cartilage is located ears, nose and end parts of a long bones. यहाँ भी आपको क्या प्रेजेंट है? ये कार्टिलेज प्रेजेंट है जो कि मूवमेंट्स में हेल्प करता है. क्लियर? एक कार्टिलेज है, ये आपको शेप प्रोवाइड करता है. स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है? ये बोन और कार्टिलेज. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है दैट इज द फाइबर्स. अब वो टिश्यू हमारे क्या है? टेंडन एंड लिगामेंट्स. टेंडन एंड लिगामेंट्स, it is also a fibrous connective tissue. It is made up of a, फर्स्ट हमारा क्या है? टेंडन किससे बना होता है? ये आपको मेडअप होते हैं व्हाइट फाइबर से. This non-elastic. This tendon is non-elastic and connect bone to muscles, having great strength and maintains. इसका काम क्या हो गया? टेंडन का ये आपको बोन और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है. नॉन इलास्टिक है, हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ, इसको जोड़ने का काम करता है. दूसरा हमारा क्या है? लिगामेंट्स. लिगामेंट्स का काम इट इज इलास्टिक, सब फ्लेक्सिबिलिटी. There is some flexibility, ligaments, and it connects the bone to bone, having considerable strength. And the fibers are both type of fiber, yellow fiber and white fiber, both present in the ligaments. The ligaments are also a fibrous connective tissue that connects, tendon connects bone to muscles, ligaments connect the muscles, bone to bone, connect the bone to bone. Clear? Any doubts? अब इसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे, ये बोन और कार्टिलेज में भी डिफरेंस आ जाता है. बोन और कार्टिलेज के डिफरेंस आ जाएंगे, टेंडन और लिगामेंट्स में डिफरेंस आ जाएंगे. जैसे अभी हमने टेंडन और लिगामेंट हो गया,
तो टेंडन क्या हो गया, रिलीज हो गया, नॉन इलास्टिक। और ये आपका लिगामेंट्स क्या है, इलास्टिक है, यानी ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, इट इज फ्लेक्सिबल। इसका काम क्या है, बोन को मसल से कनेक्ट करना। लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स के काम क्या है, इट इज कनेक्ट द बोन टू बोन, हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ, टेंडन पोजीशन को मेंटेन रखता है। लिगामेंट्स हैं, इसके अंदर कंसिडरेबल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होते हैं। ये आपका टेंडन है, ये व्हाइट फाइबर से बने होते हैं, व्हाइट, और इसके अंदर दोनों होते हैं, कौन से होते हैं, व्हाइट और येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन ए लिगामेंट्स। नेक्स्ट है एरोलर। अब एरोलर इज द अनदर टाइप ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका काम क्या है, देखिए ये जोड़ने का काम किया, ये फ्रेमवर्क दिया, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम। अब ये जो एरोलर टिश्यू है, इस एरोलर टिश्यू का काम है जो मसल और स्किन को जोड़ने का काम। मसल और स्किन इज वाइडली distributed and the presence in a space between the organs। जो organs हैं उनके बीच में फील्ड होता है, fill the spaces, and ये मसल्स के अराउंड होते हैं, ब्लड वेसल्स हैं इसके अराउंड होते हैं, नर्व्स हैं नर्व्स के अराउंड ये प्रेजेंस होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, it acts as a supporting and packing tissue between the organ lying in a body cavity, and its main functions, ये हमारे बीच में डिफ्यूजन, जो ऑक्सीजन है और सिंपल सब्सटेंसेज हैं ब्लड वेसल्स में, थिनर ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसका डिफ्यूजन है, दैट इज आल्सो अकर्स इन एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू कनेक्ट द स्किन टू मसल्स, स्किन और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। इसका काम रिपेयरिंग करना, और जो कोई इंजुरी हो गया उसको रिपेयर करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ए एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू के लिए और भी हम देख सकते हैं, ये इज हेल्प में पैकिंग, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के गैप्स के बीच में फिल्ड होता है और उस पोजीशन पर मेंटेन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ए एरोलर टिश्यू। नेक्स्ट इज द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, ये बनते हैं फैट सेल्स, दैट इज प्रेजेंट्स अंडर द स्किन प्रेजेंट्स। एडिपोज टिश्यू इट इज आल्सो प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट helps in the protection and presents stores the fats, provide insulation to the body parts that is provided by the adipose tissue. So it is a fat reservoir, provides the shape to the limbs of the body, it acts as a insulator, it maintains the temperature of the body, around the kidney, adipose tissue are present, and cushions, provides the cushions, behaves as a cushions, and protects the body parts. Adipose tissue, अब इसको और ध्यान दीजिए, जनरली आप देखते हैं लोगों को ये कह देता है बच्चों को कि बेटा कुछ नहीं, ये यहाँ पर एडिपोज टिश्यू है, फैट्स कलेक्ट हैं, और इस फैट्स का क्या प्रोवाइड किया, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो इंसुलेशन प्रोवाइड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ए एडिपोज टिश्यू, and it maintain the
टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन। टुडे एक्सप्लेन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये सपोर्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है? पैकिंग करना, पैकिंग है, सपोर्टिंग है, बाइंडिंग है, दैट इज द फंक्शन ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू। अब ये डिपेंड किस चीज पर करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द मैट्रिक्स, सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट्स है, उन मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इस बेस पर हम क्लासिफाई करेंगे। ब्लड है, ब्लड हमारा हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बोन हो गया और कार्टिलेज है, ये हमें शेप प्रोवाइड करता है, इसके अंदर हार्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। बोन में हमारा क्या होगा? प्रोटीन है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। कार्टिलेज हो गया, कार्टिलेज में लूज होते हैं, ये पोरस भी होगा, ब्लड फिल्ड होते हैं। कार्टिलेज में लेस blood vessels are present and it is provides the particular shape presents in end parts of the bones। फिर ये हमारा कौन सा है? टेंडन और लिगामेंट्स हैं, ये फाइबरस टिश्यू है, दैट कनेक्ट, ये कनेक्ट करने का काम करता है। इसको बोन को मसल से, बोन को बोन से कनेक्ट करना। एरोलर टिश्यू है, ये रिपेयरिंग का काम करता है, फीडिंग का काम करता है, प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। ये फंक्शन आपका किसका हो गया? एरोलर टिश्यू। एक एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू के अंदर हमारा आता है दैट इज फैट सेल्स। फैट सेल्स आर प्रेजेंट, फैट रिजर्वर्स एंड कलेक्ट्स प्रेजेंट्स अंडर द स्किन एंड इट प्रोवाइड इंसुलेशन टू द बॉडी पार्ट्स। This way explain the connective tissue. In a previous video, explain muscular and nervous tissue. Clear?